یزید اپنی بہن سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یزید نے اپنی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارا آج کا واقعہ یزید کی بہن امالہ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ یزید اپنی سوتیلی بہن امالہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا، بلکہ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خاندان یزید اور خاندان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مابین کیسی رشتہ داریاں تھیں۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیا امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے؟ یہ سب باتیں تفصیلاً ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سر یہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو یزید کی بہن امالہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا، اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی، تو یزید نے امام سجاد کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہے، تو یزید نے امام سجاد سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں، تو امام سجاد نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کریں۔ ناظرین، یزید نے تمام شرطیں مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو شیطان صفت عورت غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ ناظرین، یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت مآب یزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے خزانے چاندی، ہیرے، جواہرات سے بھرے ہیں اور جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی ہے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم حسین کے قاتل یزید کی بہن ہو۔ تمہارے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا اور تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد امجد پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، حضرت زینب نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ناظرین، اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب کے حق میں آواز بلند کی اور حضرت زینب نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قید ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ ناظرین، اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء دین سے فتویٰ لے کر حضرت حسین کو کربلا میں شہید کروایا۔
नाज़रीन, यजीद की बहन अमाला का ये किस्सा मुस्तनद रिवायात में तलाश के बावजूद मिल नहीं सका, लिहाजा ये किस्सा तारीख का एक बाब है। इस किस्से में कितनी सदाकत है अल्लाह ही बेहतर जानता है। आइए अब मुस्तनद रिवायात से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत क्यों नहीं की थी। हजरत हुसैन ने साबित कदमी की मिसाल दिखाई, आपको डराया धमकाया गया, आप और आपके साथियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, हत्ता कि आप और आपके तकरीबन तमाम तर खानदान और साथियों को बेदर्दी से शहीद किया गया, मगर आपने बातिल के साथ किसी मुदाहनत से काम लिया और ना यजीद की बैत के लिए राजी हुए। सवाल ये है कि ये सब मुश्किलात, तकालीफ और कुर्बानी उन्होंने किस मकसद के लिए दी? क्या आप थोड़ी मुदाहनत, नरमी और समझौता कर लेते तो अच्छा न होता? ये ख्याल अमूमन लोगों के जहनों में पैदा होता है। आइए इस पर बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत हुसैन अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे, इसलिए यजीदी फौज से जा टकराए। ये दुरुस्त है कि उन्हें कूफा और दीगर इलाकों से बुलावे आए थे कि आप आएं ताकि आपको खलीफा मुंतखब किया जा सके। उन्हें वसी अवामी हिमायत का वादा किया गया। बुजुर्गों ने आपको समझाया भी कि ये धोखा लगता है, मगर आपने जाने का कसद कर लिया तो खानदान के अक्सर मर्दों, खवातीन, बच्चों समेत आपके साथ आज़िम सफर हो गए। ताहम हुकूमत से लड़ना आपके पेश नजर होता तो आप मुनासिब जंग की तैयारी करके जाते और औरतों और बच्चों को साथ ही न ले जाते। वहाँ पहुँचने पर जब हजरत हुसैन को पता चला कि हुकूमत के जुल्म सतम के खौफ या लालच दिए जाने के बायस लोग आपका साथ देने से पहलूदही कर रही हैं, तो आपने वापसी का इरादा किया। ताहम आपको वापसी आने की इजाजत को इस बात से मशरूत किया गया कि आप यजीद की बैत कर लें। आप मगर ऐसा करने से मुअत्तमिल थे। आपने मुज़ाकरात कारों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा हुकूमत से लड़ने या हुकूमत हासिल करने या आइंदा बगावत करने का कोई इरादा नहीं, मगर वो ना माने। कहा जाता है कि यजीद का खुद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों को कत्ल करने का इरादा नहीं था, मगर उनके सिपह सालार खुद को शाह से ज्यादा शाह के वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुलह की कोशिशें नाकाम बनाई और बिलाफिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर तन से जुदा और उनके साथियों को खून में नहला दिया। जब यजीद को इमाम का सर पेश किया गया तो कहा जाता है उन्होंने आपके कत्ल पर दुख का इजहार किया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि यजीद ने इमाम और उनके साथियों के कत्लेआम में मुलव्विस अपने किसी आमिल के खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं, उन्हें कोई सजा दी, बल्कि वो इसी तरह अपने ओहदों पर बाकी और उनके मुअत्तमिद रहे जिस तरह कत्ले इमाम से पहले थे। दरअसल उस वक्त जो हुकूमत कायम थी वो लोगों की आजाद मर्जी से मुंतखब नहीं हुई थी, बल्कि एक मौरूसी बादशाहत थी जो लोगों को अपनी बैत पर मजबूर कर रही थी। इसी तरह बिलजबर हुकूमत कायम करने और लोगों को बैत अतात पर मजबूर करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये इमामत बरहक नहीं थी। लिहाजा हजरत हुसैन ने सोचा कि अगर वो हक पर इस्तिकामत और साबित कदमी दिखाने की बजाय यजीद की बैत कर लेते और मसलिहत गोशी पर मदाहनत से काम दे लेते हैं तो इस बात का खदशा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नवासा होने की बिना पर अहले इस्लाम आपके तर्ज अमल को इमाम बातिन फासिक की जोर जबरदस्ती वाली बैत के लिए हुज्जत समझ लेते और ये एक बड़ी नजीर बन जाता। आप अगर चाहते तो मुजाहिमत से काम दे लेते और जाहिर तौर पर यजीद की नकली बैत कर लेते। इस तरह आप और आपके साथियों की जानें बच जाती, मगर आपने ईमानी गैरत का मुजाहिरा करते हुए रुखसत की बजाय अजीमत का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। यूं उन्होंने सिखा दिया कि मौत या किसी दूसरे नुकसान के खौफ से हक को छोड़कर बातिल की हिमायत करना मर्दों का शेवा नहीं है। लिहाजा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम बाते की बैत करने से इनकार कर दिया और अपनी कौलो अमली शहादत और अजीम शान कुर्बानी के जरिए कयामत तक के लिए लोगों पर राह अजीम क्लासिक कर दी। आपने सिखा दिया कि अगर आइंदा हक को बातिल के दरमियान इस तरह का मार्का बरपा हो, हक को बातिल में तरजीह हो इंतखाब का मौका आए या कोई फासिक और जालिम लोगों पर बिल जबर अपनी हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश करे तो आज़ादी, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और इंसानी वकार के अलमबरदार किसी मुदाहनत से काम न ले,
जुर्रत दिखाते हुए हक के साथ सीना तान कर खड़े हों और बातिल के साथ किसी भी तरह की हिमायत और ताउन से सरी इनकार कर दें। हकीकत ये है कि हजरत इमाम हरियत जवाबदेह हुकूमत, इंसान दोस्ती और हक को सदाकत के लिए कोशां लोगों के लिए मशले रहा है। वीडियो के आखिर में नाज़रीन ये भी जान लीजिए कि खानदान यजीद और खानदान हुसैन के माबैन कैसी रिश्तेदारियां थीं। तो नाज़रीन, इस्लामी तारीख की सरसरियों सतीहों मुताला से बाज लोगों ने ये नजरिया कायम कर लिया है कि गोया बनु उमैया यानी खानदान यजीद और बनु हाशिम यानी खानदान हुसैन के माबैन कोई सख्त दुश्मनी थी। लेकिन जब हम इंसाफ के मुस्तनद किताब का मुताला करते हैं तो हमें मामला उसके बिल्कुल बरक्स नजर आता है। हम देखते हैं कि अहले बैत की खवातीन कसरत से बनु उमैया में ब्याही गईं और बनु उमैया बनु हाशिम में वाक़या करबला के बाद भी मुशावरत के ताल्लुकात चलते रहे। और जाहिर सी बात है कि एक इंसान अपनी बेटी और बहन उसी खानदान में ब्याहता है जिसके लोगों के बारे में उसको कतई इत्मीनान हो कि वो जी शरफ़ो आला मर्तबत हैं और हमारी खवातीन का ख्याल रखेंगे। इस सिलसिले में कुछ रिश्तेदारियां भी मुलाहिजा कर सकते हैं। नंबर 1, सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी रमला मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन अल-हुक्म के फर्जंद मुआविया बिन मरवान को ब्याही थी, जो कि खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी भाई थे। नंबर 2, सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी साहबजादी उम्मे मरवान बिन अल-हुक्म के बेटे अब्दुल मुल्क बिन मरवान, जो कि खलीफा थे अपने जमाने में, उनको ब्याही थी। नंबर 3, सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तीसरी साहबजादी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अमीर आमिर बिन कनीज ओंवे के फर्जंद अब्दुल रहमान को ब्याही गई थी। इसी तरह सय्यदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़े बेटे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक नहीं बल्कि 7 पोतियां इस खानदान में ब्याही गई थी। नंबर 1, सईदा नफीसा बिनते ज़ैद बिन हसन की शादी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क बिन मरवान से हुई। नंबर 2, इन नफीसा की एक चचाजाद बहन ज़ैनब बिनते हसन असना बिन हसन की शादी भी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क बिन मरवान से हुई थी। नंबर 3, सईदना हसन बिन अली की तीसरी पोती इमाम उम्मे कासिम बिनते हसन मसना बिन हसन की शादी उस्मान के पोते मरवान बिन आहान बिन उस्मान से हुई। मरवान बिन उस्मान के इंतकाल के बाद उम्मे कासिम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के अकद में आईं। नंबर 4, सय्यदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चौथी पोती मरवान रहमतुल्लाह अलैह की एक फर्जंद मुआविया बिन मरवान बिन अलू हुक्म दिया, जिनके बतन से हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र नवाज से वलीद बिन मुआविया मुतवल्लिद हुए। नंबर 5, सय्यदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 5वीं पोती हमादा बिनते हसन मसना मरवान के एक भतीजे के फर्जंद इस्माइल बिन अब्दुल मुल्क बिन हारिस बिन हुक्म को ब्याही गई थी। यहाँ ये भी जान लीजिए कि क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने यजीद बिन मुआविया के कुफ्र का फतवा दिया है। इस हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने उनसे यजीद के बारे में सवाल किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करे और फिर यजीद से भी दोस्ती रखे, और ऐसे शख्स पर मैं अहमद बिन हम्बल लानत क्यों ना करूं जिस पर कुरान में अल्लाह ने खुद लानत की हो। फर्जंद ने अर्ज किया, कुरान में किस जगह उस पर लानत हुई? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के इस फरमान में, बस ए मुनाफिको, तुमसे तवक्को यही है कि अगर तुम किताल से गुरेज करके बच निकलो और हुकूमत हासिल कर लो तो तुम जमीन में फसाद ही बर्पा करोगे और अपने इन कराबती रिश्तों को तोड़ डालोगे जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआसलत और मुदत का हुक्म दिया है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और उनके कानों को बहरा कर दिया है और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कि कत्ल इमाम हुसैन से बढ़कर भी कोई फसाद हो सकता है। यजीद के बारे में हमें क्या अकीदा रखना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब यही है कि यजीद के बारे में खामोशी बेहतर है। यही अक्सर अकाबिर उलमा का मौक़िफ़ है। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद के दरमियान जो जंग हुई उसमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे और यजीद का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत था। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अहले हक का साथ देने वाला बनाए और हमें दीन इस्लाम की कामिल समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।